اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنی قیمتی مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں اور دعا فرمائیں کہ ان بچوں کو حافظ قرآن اور عمل کرنے والا بھی بنائے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن پاک کا آسمانوں سے، لوح محفوظ سے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر آنے کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ اللہ نے اس سیرت کو خود بیان فرمایا ہے کہ کیسے ہم نے اس کو اتارا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب جبرائیل کے ذریعے سے ہم نے قرآن کو پیارے حبیب کے پاس بھیجا تو پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھنے لگے۔ کیوں؟ کہ اس کا کوئی حرف چھوٹ نہ جائے۔ مجھے اس قرآن پاک کو پوری امت تک پہنچانا ہے، پوری دنیا تک پہنچانا ہے، کوئی حرف آگے پیچھے نہ ہو جائے، کوئی حرف اس میں سے چھوٹ نہ جائے۔ تو ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب بھی جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کے لیے پڑھنے لگے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ جب قرآن پڑھا جائے، آپ کے سینے پہ اتارا جائے، تو آپ اس وقت پڑھیں نہیں، خاموش سنیں۔ آپ کو یہ فکر ہے، آپ کو یہ پریشانی لاحق ہو رہی ہے کہ کہیں کوئی حرف چھوٹ نہ جائے، کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب سے فرمایا آپ پریشان کیوں ہو رہے؟ آپ کی پریشانی پر اللہ تبارک تعالیٰ باقاعدہ آیتیں نازل فرما رہا ہے کہ میرا حبیب پریشان ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس وقت یہ قرآن آپ کے سامنے پڑھا جائے، آپ خاموش ہو کر کے سنیے، یاد کرنے کی فکر مت کریے۔ یاد تو اللہ خود کرا دے گا، یاد تو اللہ خود کرا دے گا۔ یہ اللہ کے ذمے ہے کہ یہ قرآن آپ کو یاد کرائے، لہٰذا آپ اس کی فکر نہ کریں۔ آپ تو جس وقت تلاوت ہو اس وقت آپ خاموشی کے ساتھ خالی سنا کریں۔ کتنی عظیم چیز معلوم ہوئی، کتنا بڑا ادب معلوم ہوا کہ جب قرآن پاک پڑھا جایا کرے تو خاموش ہو کر سننا ہم لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ خاموش ہو کر سننا، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو یاد کرا دیں گے، اللہ نے پیارے حبیب کے سینے میں اس کو یاد کرایا اور پیارے حبیب کے سینے سے صحابہ کے سینے میں منتقل کیا۔ پھر وہاں سے منتقل ہوتا ہوا وہ اللہ کا وعدہ ہم یہ کانپور میں بیٹھ کر کے دیکھیں کہ اللہ کیسے یاد کراتا ہے، کیسے حفاظت کرتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے 9 10 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر طاقت تھی کہ یہ 30 پارے اٹھا کر اپنے اندر رکھ لیں؟ نہیں، یہ طاقت اللہ کی ہے۔ اللہ نے ان کے سینے میں بٹھالا ہے، اللہ نے ان کے سینے میں اتارا ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے پیارے حبیب سے کیا۔ آپ فکر نہ کریں، پریشان نہ ہوں، یہ قرآن محفوظ رہے گا اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہ وہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ دشمنان اسلام کتنی بھی کوشش کریں اس کو مٹا نہیں سکتے، اور اللہ نے ان کو طاقت دی، دولت دی، موقع دیا کہ مٹاؤ۔ روس والوں نے قرآن پاک پورے ملک سے ختم کر دی۔ ایک نسخہ بھی قرآن پاک کا روس کے اندر نہیں ملتا تھا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے
کہ ایئرپورٹ پر ایک ان کے شاگرد اترے, ایک بڑھیا نے پوچھا کہ کوئی تمہارے پاس قرآن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا میں سمجھی کہ آج قرآن دیکھنے کو مل جائے گا, 80 سال کی عمر ہو گئی ہے میں نے قرآن نہیں دیکھا. روس کے 80 سال کی عمر ہو گئی, تمہارے پاس ہوتا, تم دوسرے ملک سے آ رہے ہو تو میں کم سے کم قیامت میں میدان میں یہ تو کہہ دیتی کہ میں نے قرآن دیکھا. اتنی کوشش کر کے سارا کا سارا قرآن کے نسخے اپنے ملک سے ختم کر دیے, لیکن جس وقت روس آزاد ہوا ہے اس وقت BBC لندن کی خبریں سب لوگ کان لگا کے سنتے تھے, ہم بھی بچپنے میں کان لگا کے بیٹھ گئے. تو ہم نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ وہ پترکار پوچھ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی قرآن پڑھا ہوا ہے؟ کہنے لگے اتنے پڑھے ہوئے ہیں, اتنے پڑھے ہوئے ہیں, اتنے حافظ ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے, ہر مسجد میں حافظ مل جائے گا. کہاں سے ہو گیا یہ؟ قرآن کے نسخے تو سب مٹا دیے گئے تھے. کہا کتنے بھی مٹا دو یہ مٹنے والا نہیں. اللہ نے سینوں میں اس جگہ پر قرآن کو رکھا ہے کہ ساری مشینیں آپ لگا دیجئے, آپ ایکس رے کرا دیجئے, آپ MRI کرا دیجئے, آپ اس سے بڑی مشینوں میں ان بچوں کو داخل کر دیجئے, لیکن وہ مشینیں پتہ نہیں لگا سکتی کہ اللہ نے رکھا کہاں پر. آؤ مٹا کے دکھاؤ. تمہارے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے وہاں تک, تمہاری طاقتیں نہیں پہنچ سکتی وہاں تک. اللہ نے وہاں رکھا ہے اس کو. یہ اللہ کا جو وعدہ تھا اللہ نے اس کو پورا کیا ہے اور قیامت تک یہ وعدہ پورا ہوتا رہے. اس کے لیے اللہ نے مدارس کو منتخب کیا ہے. اللہ نے اس مدارس کے نظام کو چلایا ہے جس کے ذریعے سے قرآن پاک کے الفاظ بھی محفوظ ہوتے ہیں, معانی بھی محفوظ ہوتے ہیں, احکامات بھی محفوظ ہوتے ہیں. یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ ادب بتایا کہ جب قرآن کی تلاوت ہو خاموش ہو کے سننا چاہیے. حیدرآباد کے اندر حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ جلسہ تھا, آپ تشریف لا رہے تھے اور اس جلسہ گاہ میں داخل ہونے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت اسٹیج پہ شروع ہو گئی. تو آپ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئے, وہیں بیٹھ گئے. فرمایا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, سننا فرض ہے, چلنا نہیں ہے, بیٹھ جاؤ. حضرت بھی وہیں چپلوں کے پاس بیٹھ گئے اور قرآن پاک کو جب تلاوت پوری ہو گئی تب آپ اندر تشریف لائے. فرمایا کہ جب کوئی بڑا اسٹیج پہ آتا ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, دیکھنے لگتے ہیں, استقبال کرنے لگتے ہیں, اور وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. قرآن سے بڑا کون آ گیا؟ قرآن سے بڑا کون ہے؟ تلاوت کے وقت کسی بڑے کو آنا بھی نہیں چاہیے کہ لوگ اس کی طرف دیکھنے لگیں اور کھڑے ہونے لگیں کہ قرآن پاک کی توہین میں شمار نہیں ہو جائے. کتنا ان اولیاء کرام نے اس کا اعزاز, اس کی عظمت دلوں میں بٹھا لی ہے, قرآن پاک کی تلاوت کا سننا. اسی لیے ایک آیت نہیں, بہت سی آیتیں ہیں قرآن پاک میں. اسی کو دیکھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے جب قرآن کی تلاوت ہو مت پڑھو, خاموش رہو, سنو. لہذا جب امام بھی نماز میں قرآن کی تلاوت کرے, سورۃ الفاتحہ پڑھے, آیتیں پڑھے, خاموش ہو کے سنا کرو, اپنی زبان سے پڑھا مت کرو. یہ قرآن مقدس ہم کو سبق دے رہا ہے. کیا شاندار ادب ہے, کیسی تعظیم سکھائی جا رہی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اس کی حفاظت اللہ نے کی ہے اور کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے. اس کے پڑھنے کی حفاظت بھی اللہ کرے گا. اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے اس کو آسان بھی کر دیا ہے. اتنا آسان ہے کہ 9 سال کا بچہ پورا اندر سمو لے رہا ہے, اندر محفوظ کیے لے رہا ہے. شیطان ہم کو دھوکہ دیتا ہے کہ جو ہے قرآن بڑا مشکل ہے اس لیے ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں. ہماری عمر 40 سال ہو گئی, 50 سال ہو گئی, تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں قرآن پڑھانا شروع کیا. 40 سال کی عمر. پتہ چلا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری عمر نکل گئی ہے قرآن پڑھنے. یہ مدرسے خالی بچوں کے لیے نہیں, بڑوں کے لیے بھی ہیں. جس نے قرآن نہیں پڑھا ہے, عمر کے کسی بھی پڑاؤ میں ہو, اس کو مدرسے میں آ کر قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے. فرمایا کب تک پڑھایا؟ 63 سال کی عمر تک اللہ نے پیارے حبیب کو قرآن پڑھایا. 23 سال تک اللہ نے قرآن پڑھایا. معلوم ہوا اگر پڑھنے میں آپ کو دقت آ رہی ہے, پریشانی آ رہی ہے, دیر لگ رہی ہے, گھبرائیے مت. اللہ نے 23 سال میں اللہ کے حبیب کو پڑھایا ہے, تو تم کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ ابھی تمہارا تو 3 سال بھی نہیں ہوا. اطمینان سے پڑھو اور تھوڑا تھوڑا پڑھو, لیکن جو ہے پڑھنے سے ہمت مت ہارو. اللہ اس کو پڑھائے گا اور اللہ تمہارے سینے میں اس کو محفوظ کرے.
तो जो लोग कुरान पढ़े हुए नहीं हैं उनको भी चाहिए कि कुरान पाक इन बच्चों को देखकर इबरत हासिल करें कि जब ये बच्चे पढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते, हमारे अंदर क्या कमी है। और अगर उन्होंने नहीं पढ़ा और कोई बगैर पढ़ा दुनिया से चला गया तो मालूम होता है रिवायतों से कि क़यामत के मैदान में ये कुरान भी उसके खिलाफ मुकदमा दायर करेगा और प्यारे हबीब भी उसके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे कि इतना बड़ा कलाम जो अल्लाह ने हजरत आदम से लेकर ईसा तक किसी को नहीं दिया, सिर्फ प्यारे हबीब की उम्मत को दिया, प्यारे हबीब के तुफैल में दिया, और फिर भी वो आंख बंद करके रहा, 50 साल रह करके आया, इसने कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह इसको पकड़िए, इसको सजा दीजिए। ये बड़ा है, बहुत बड़ा खसारे का दिन होगा अगर हमने कुरान नहीं पढ़ा। इसलिए हर शख्स को चाहिए वो कुरान पढ़े। तीसरी चीज ये है कि अल्लाह सिर्फ ईमान वालों को कुरान देता है, ईमान वालों के सीने में कुरान देता है। यहूदी हो, ईसाई हो, काफिर हो, अल्लाह उसके सीने में कुरान को नहीं दिया करता है। मालूम ईमान की पहचान है, ईमान की हिफाजत है कुरान पाक के जरिए से। अगर अपनी ईमान की हिफाजत चाहते हो तो कुरान पढ़ो। जितने लोग मुर्तद होते नजर आ रहे हैं वो वही लोग हैं जो कुरान से दूर, जिन्होंने कुरान पाक को पढ़ा नहीं, जिन्होंने कुरान पाक से निगाहें मोड़ ली, जिन्होंने कुरान पाक से अपनी तवज्जो को हटा लिया, वो लोग अल्लाह उनको दुनिया में ही दिखाई दे रहा है और इस्लाम से बाहर किए दे रहा है। इसलिए ये ईमान की पहचान है। इन बच्चों के बारे में कसम खाकर कह सकते हैं कि ये ईमान वाले, क्योंकि अल्लाह ने इनके सीने में कुरान को रखा है। इसका मतलब ये ईमान वाले के ही सीने में ये कुरान पाक रहता है और बेईमान के सीने में नहीं रहता, निकाल लिए। अल्लाह तबारक तआला का फजल है कि उसने हम लोगों को उस मजलिस में बिठाला जहां ये नमूने मौजूद हैं। अल्लाह ने, बहुत से दुश्मन लोग ये कहते हैं कि सहाबा ने कुरान को बदल दिए, सहाबा ने इसमें से कुछ आयतें निकाल दी, 40 पारे थे, 30 ही पारे रह गए, 10 पारे गायब कर दिए, बहुत से नाम निकाल दिए। ये सब गुमराह लोग हैं, इल्जाम लगाते हैं। ये जो बैठे हैं बच्चे, ये चैलेंज कर रहे हैं, अगर सहाबा ने बदला है तो तुम भी तो बदल सकते हो, बदल के दिखाओ, तुम्हें भी तो ताकत है, बदल के दिखाओ। हम यहाँ बैठे हुए हैं जिम्मेदारी के साथ, चैलेंज के साथ बैठे हुए हैं। कोई अगर ऊ का ई करेगा तो हम उसको पकड़ लेंगे, हम उसको चिल्ला करके रोकेंगे। अगर इनका बच्चों के वालिद हाफिज हों और तरावीह में खड़े होकर कुरान सुना रहे हों और कहीं ऊ का ई पढ़ दें तो ये बच्चा अपने अब्बा को भी नहीं चलने देगा, अपने अब्बा को भी टोक देगा कि ये ऊ का ई हो गया है, इसको सही करिए, ये है निजाम अल्लाह का। तो कैसे कह सकते हो कि साहबा ने बदल दिया? तुम बदल लो, तुम्हारे पास ताकत है, नेट है, सारी चीजें हैं, असबाब हैं, एक खटका दबाओगे पूरी दुनिया में बदल जाएगा, तो बदल करके दिखाओ। जहां किसी ने बदला, नेट पर कई मर्तबा कोशिश हो चुकी है, जरा सा बदलता है सब हाफिज खड़े हो जाते हैं, ये गलत है, एहतजाज करते हैं, इसको हटाया जाए, सही किया जाए, फिर वो मजबूर होता है और उसको सही कर देता है। ये अल्लाह ने निजाम चलाया है। ये चैलेंज कर रहे हैं बच्चे, किसी की हिम्मत हो तो बदल के दिखलाए, इसको बदल के दिखलाए। हम यहाँ बैठे हुए हैं, मदरसे वालों ने मेहनत करके अल्लाह के फजल से हमको तैयार किया है, हम किसी को बदलने नहीं देंगे। हम इसकी निगरानी के लिए फौज बनाकर, फौजी बनाकर खड़े किए गए। तरावीह में हम देखते हैं कुरान पाक पढ़ा जाता है। हर साल अल्लाह ने निज़ाम चलाया है कि कुरान पाक की हिफाजत का एक निज़ाम ये भी है कि तरावीह के अंदर कुरान पढ़ा जाए, सारे लोग खड़े होकर सुने, जितने बच्चों ने याद किया है वो सुनाएं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि साहब हमको ऐसा हाफिज साहब दे दीजिए जो 10 मिनट में एक पारा सुना दे, सुपर फास्ट हाफिज। कितने लोगों को जुबान से मैंने सुना कि हम उस मस्जिद में कुरान शरीफ सुनते हैं, हमारे हाफिज साहब सुपर फास्ट हाफिज। क्या मतलब है? 10 मिनट में एक पारा सुना दे, फिर 10 मिनट में एक पारा कैसे हो जाएगा? मालूम हुआ कि सुनने वाले भी धोखा खा रहे हैं और सुनाने वाले भी धोखा खा रहे हैं। नहीं हो सकता। कुरान पाक को तो ऐसे तलाश करना चाहिए कि एक एक हरफ साफ साफ पढ़े और एक एक हरफ साफ साफ सुनाई दे, तब तो हम कुरान सुनने वाले और सुनाने वाले होंगे। और अगर हमने 10 मिनट वाला हाफिज तलाश किया तो आप ये समझिए कि आप भी धोखा खा रहे हैं और कुछ मिलने वाला नहीं है, गुनाह और पड़ रहा है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब रोजाना 10 बजे तरावी खत्म हो जाती थी, आज 10:05 हो गए, लगता है आज हाफिज साहब को याद नहीं था। अरे 5 मिनट बढ़ती हो गई, आपको परेशानी होने लगी है। 5 मिनट अगर बीवी पास में बैठी रहे
5 मिनट देर तक दादा की गोद में पोता बैठा रहे, कितनी खुशी होती है। अगर अल्लाह का कलाम 5 मिनट और देर तक सुनने को मिल गया तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। न ये कि घड़ियां देखना, चेहरे बदलना, करवटें बदलना, ये कुरान पाक का अदब नहीं, ये कुरान पाक से बेताल्लुकी का इजहार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान पाक कहते हैं साहब हाफिज साहब को लुक़मे बहुत लग रहे हैं, हाफिज साहब ने याद नहीं किया। नहीं, कुरान पाक कितना भी पुख्ता याद किया जाए, कितना भी अच्छा याद हो, वहां जो खड़े होने की जगह है और पढ़ने की जगह है वहां भूल जाता है आदमी। इमाम हरम भूलता है भाई, काबा के सामने खड़े होकर सुना रहा है। इमाम मदीना भूलता है, 5-5 लुक़मे लग जाते हैं। ये शैतान ने हमें धोखे में डाला है, हरगिज नहीं। ये लुक़मे क्यों लगते हैं? लुक़मे इसलिए लगते हैं ताकि दुनिया को पता चल जाए ये ड्रामा नहीं है, ये कुरान पाक कोई ड्रामा नहीं है। देखो ये भूलता है तो पीछे से, गलत करता है तो पीछे से बताने वाली फौज खड़ी हुई है, तो कैसे दुनिया को बदलने देगी? वो इमाम हरम को नहीं बदलने दे रही है, अपने इमाम को कैसे बदलने देगी? हरगिज नहीं बदलने देगी। कितना भी बड़ा हो, ये छोटे छोटे बोल देंगे कि ये आपने गलत पढ़ा है, इसको सही कीजिए। इसलिए हमको याद रखना चाहिए कि इमाम का भूल जाना ये याद न करने की निशानी नहीं है। वो अगर भूल रहा है, उससे अल्लाह के इस कुरान की हिफाजत का ऐलान हो रहा है, उसको एहतराम की निगाहों से देखना चाहिए। हम गलती करते हैं। कुरान पाक को आराम आराम से सुनिए। 10 दिन में लोग सुनने का इंतजाम करते हैं, क्योंकि हम कारोबारी आदमी। 10 दिन के बाद कारोबार के लिए चले गए, 5 दिन के बाद लौट करके आए, मस्जिद में आए, अरे यहाँ तो कुरान हो रहा है, भागते निकल करके कि हम तो सुन चुके, हम यहाँ क्यों खड़े होंगे, हम कुरान पाक को क्यों सुनेंगे? ये तो कुरान पाक से बेतवज्जुही है, कुरान पाक से गफलत है, कुरान पाक से लाताल्लुकी है। 5 दिन के बाद लौट के आ रहे हैं, कुरान पढ़ा जा रहा है, हाथ बांध के खड़े हो, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने फिर पढ़ सुनने की तौफीक दे दी। अल्लाह का कलाम सुनेंगे, अल्लाह का कलाम दिल में उतारेंगे, एहतराम के साथ आकर के खड़ा होना चाहिए। अब एक बात और, वो ये है कि कुरान पाक के हाफिज के एजाज में अल्लाह ने क्या क्या दिया। एक तो अल्लाह ने अपना नाम दे दिया हाफिज। कोई भी शख्स अपने बेटे का नाम, अपना नाम हाफिज रखना चाहे नहीं रख सकता, इजाजत नहीं। उसको अब्दुल हाफिज नाम रखना पड़े कि हाफिज का बंदा, अब्दुल हाफिज। लेकिन जो कुरान पाक जिसके सीने में आ जाता है, अल्लाह एजाज के तौर पर अपना नाम भी उसे दे देता है कि इसको सब लोग हाफिज कहो, इसको सब लोग हाफिज जी कहो, कि अल्लाह ने खुद हिफाजत के लिए इसको चुना है, इसके सीने में कुरान रखा है, इसलिए अल्लाह का नाम एजाज के तौर पर इसे दिया गया। दूसरा एजाज आपने अब तक सुना कि 10 जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है उन्हें भी वो निकालेगा, अल्लाह इसकी उसको तौफीक। तीसरा इनाम जो इस वक्त मदरसे वालों ने सरों पे पगड़ी बांधी, ये पगड़ी प्यारे हबीब की सुन्नत है। ये प्यारे हबीब के सर पर जिस तरह पगड़ी होती थी उस तरह इस हाफिज के सर पर पगड़ी रखी गई। इतने एजाजात मिलने के बाद भी हमें तसल्ली नहीं होती। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं हमारे यहाँ कोई बड़ा आता है, MP आता है, MLA आता है, तो उसके गले में तो हम हार डालते हैं। तो अभी हमारे जो समाज में जो अदब होता है वो तो हुआ नहीं। अल्लाह का नाम मिल जाए, अल्लाह के हबीब की पगड़ी मिल जाए, एजाज मिल जाए, हमारे जहन में इसकी हैसियत नहीं रहती। हम क्या कहते हैं? हमारे MP साहब जब आते हैं, MLA साहब जीत के आते हैं, वो हार डालते हैं गले के अंदर, लिहाजा हार डालेंगे। ये पगड़ी की तौहीन, याद रखें, पगड़ी की तौहीन। इसका नाम ही हार है, जीत नहीं है। पगड़ी जीत की निशानी है। जब कोई जीतता है तब उसके सर पर पगड़ी बांधी जाती है। और MP MLA घरों में हार क्यों डाला जाता है? इसलिए कि उनसे बताया जाता है कि अभी तो जीत के आ गए हो, लेकिन इस हार को याद रखना, 5 साल बाद फिर हरा देंगे हम तुम्हें अगर सही काम न किया। वो तो हार उनके गले में डालकर उनकी हार याद दिलाई जाती है, वो एजाज नहीं है, वो एजाज नहीं। आपने जो हार डाला, आप देखिए जूतों के नीचे, ये उसी हार के पत्ते लोग जूतों से रौंद करके डाल जा रहे हैं, तो इसका नाम ही हार है, इसका नाम जीत नहीं है। अल्लाह के हबीब से मुताल्लिक कोई चीज जूतों के नीचे नहीं आ सकती है, उसका बेहुरमती नहीं हो सकती है। प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फोटो भी इसीलिए नहीं है, इसलिए कि फोटो को कोई भी फाड़ सकता है, फोटो को कोई भी तोड़ सकता है,
फोटो को कोई भी जला सकता है, इसलिए अल्लाह ने प्यारे हबीब का फोटो कयामत तक के लिए है, जबकि ये नहीं कैमरे उस वक्त नहीं थे, उस वक्त हाथ से बनाने वाले फोटो के इतने शानदार लोग थे कि ये कैमरे फेल है उसके सामने, जैसे हाथ से फोटो बना करते। लेकिन अल्लाह ने क्यों नहीं बनने दिया? इसलिए कि फोटो के साथ तौहीन की जा सकती है, अल्लाह के हबीब की तौहीन बर्दाश्त नहीं, अल्लाह के हबीब की तौहीन कोई नहीं कर सकता है, उसका निजाम अल्लाह ने बनाया है। लिहाजा हमको जीत पर रहना चाहिए, अपने मुल्क की, यहूद की, नसारा की नकल करके हमको उस हार को, जीत को हार में तब्दील नहीं करना चाहिए। इस कुरान पाक की बरकत से अल्लाह तबारक तआला जो लोग इसकी कद्र करते हैं उनके सीनों में बाकी रहता है। मैं वाकई आखिरी सुनाई देता हूँ। हमारे यहाँ एक बच्चा पढ़ता था और उस बच्चे के पढ़ने के दरमियान में खबर आई कि इसकी वालिदा की तबीयत खराब हुई, भेज दिया जाए, तो हमने उसको भेज दिया। काफी दिन हो गए, बच्चा लौट के नहीं आया, तो कहा फोन करो भाई, क्या बात है, क्यों नहीं आया? फोन किया तो पता चला कि अभी अभी इसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। तो 30-35 किलोमीटर दूर जगह थी। मैं चलो बच्चा हमारा मदरसे का पढ़ने वाला, उसकी तसल्ली हो जाएगी, चलते हैं उसके। मैं वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि 4 लोग यहाँ खड़े हैं, 3 लोग यहाँ खड़े हैं, 2 लोग यहाँ खड़े हैं, सब ये तस्करा कर रहे हैं कि मौत कितनी अच्छी हुई है, मौत कितनी अच्छी हुई है। तो मैंने भी कान लगाया, मैंने भी क्या हुआ मुझे भी बताओ। कहने लगे जो मौत इस औरत की हुई है, हमारी घर की औरतें ये बतला रही हैं कि जिस वक्त है मौत से पहले वो कहती थी जन्नत कितनी खूबसूरत है, जल्दी ले चलो, जन्नत कितनी खूबसूरत है, जल्दी ले चलो, देर क्यों कर रहे हो। कभी कुरान की तिलावत करने लगती, कभी कलमा पढ़ने लगती और मुस्कुराती हुई ऐसे ही है जन्नत देखती हुई चली। ऐसी तो हमने मौत देखी ही नहीं। मैंने कहा भाई ये राज किससे पता चलेगा? शोहर तलाश किया, शोहर मिला नहीं, वालिद मिल गए। तो मैंने वालिद साहब से कहा कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। कि ठीक है, बैठे हम एक जगह। पहले क्या पूछना चाहते हैं? मैंने कहा आपकी बच्ची की मौत का चर्चा सारा मोहल्ला कर रहा है और हर शख्स उस पर हैरत कर रहा है, क्या आपके इल्म में है कि आपकी बच्ची का कौन सा ऐसा अमल था कि अल्लाह ने उसको जन्नत दुनिया में दिखाई? तो वो कहने लगे कि और बातें तो क्या मैं एक वाकया सुना सकता हूं। मैंने कहा सुनाइए। कहने जब मैंने इस बच्ची की शादी की और रुखसत कर दिया, शादी के रुखसत के बाद दूसरे दिन जब मैं बुलाने गया और लेके आया, घर में दाखिल होते ही ये रोने लगी, हिचकियों से रोने लगी, आवाज से रोने लगी। हमने बहुत चिपटाया लेकिन ये खामोश नहीं। जब ज्यादा रोई तो हमने कहा भाई लगता है शोहर ने इससे कुछ कह दिया। क्या शोहर ने कुछ जहेज वहेज के बारे में कहा कि नहीं, सास ने कुछ कहा कि नहीं, ससुर ने कुछ कहा कि नहीं, नन ने कुछ कहा कि नहीं, हर चीज पर नहीं नहीं कहती रही। जब हम खामोश हो गए कि तो कुछ बताती नहीं, तो उस वक्त उसने कहा कि अब्बा आप सबके बारे में पूछ रहे हैं लेकिन अपने बारे में नहीं पूछ रहे हैं, आपने मेरे साथ क्या किया? तो कहता मैं तेरा बाप हूं, मैंने लाखों रुपया खर्च कर दिया, मालदार घर देखा, तेरी शादी करी, सारा है लोग कह रहे हैं अच्छी शादी हुई, और तू कह रही मैंने तेरे साथ क्या किया? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? तो कहने लगी अब्बा आपने मुझे मदरसे में पढ़ाया, कुरान पढ़ाया, आपने कुरान याद करवाया, और आज आपने मुझे उस घर के अंदर ढकेल दिया जहां पर आमदनी हराम है। जब आमदनी हराम होगी तो मेरे सीने से अल्लाह कुरान को निकाल लेगा, मेरी नस्लों को कुरान नहीं मिलेगा। आपने मुझे जहन्नम में ढकेल दिया, आपने मेरे साथ जुल्म किया, आपने मेरे साथ नाइंसाफी की। अगर आपको यही करना था तो आपने मुझे कुरान पढ़ाया क्यों था? आपने मुझे मदरसे में भेजा क्यों था? अब कहते हैं बाप भाई मुझे तो पता नहीं हराम आमदनी क्या है, क्या आमदनी हराम? कहने लगी अब्बा जब मैं रात में उठी तो देखा मेरी सास दूध निकाल रही है, ससुर दूध निकाल रहा है, मेरे शोहर दूध निकाल रहा है भैंसों का, और दूध निकाल करके पानी मिला रहे हैं, और बाहर गए तो कहते हैं प्योर दूध ले लो। एक तो दूध में पानी मिलाना और फिर उसको प्योर बताना, ये कहां से जायज हो जाएगा? अब्बा वही आमदनी हमको खानी पड़ेगी, वही पैसा हमें खाना पड़ेगा, तो अल्लाह कुरान को हमारे सीने में कहां बाकी रखे? ये एक लड़की है जिसको कितना एहसास है कुरान पाक की अजमत का, कि ये कब रहता है और कब चला जाता है, ये उसको मालूम है, बेचैन हो रही है, परेशान हो। तो बाप ने कहा तो फिर क्या करूं, तलाक ले लूं? तो वो कहने लगी तलाक की बात कर रहे हैं आप? अल्लाह के हबीब ने तलाक से तो ऐसे मना फरमाया है, खेल तमाशा थोड़ी दूसरा जुर्म और करेंगे आप, कि फिर क्या करूं? तो कहने लगी अब्बा ऐसा करिए एक भैंस दिला दीजिए,
और उस भैंस को मैं अपने हाथ से चारा खिलाऊंगी, अपने हाथ से दूध निकालूंगी, अपने हाथ से उसकी सारे काम करूंगी और अपने शोहर से कह दूंगी जो कोई औरत दूध लेने के लिए आए उसे अंदर भेज दीजिए और जो मर्द दूध लेने के लिए आए उसे हाथ दे दीजिए। मैं ऐसा करूंगी और इस हलाल पैसे को खाऊंगी, खिलाऊंगी, अपने औलाद की परवरिश करूंगी। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह मेरे सीने से कुरान को नहीं निकालेगा, मेरी नस्लों में कुरान बाकी रहेगा। क्या चीज है ये, इस जमाने की सुना रहा हूँ, वाकया इस जमाने का सुना रहा हूँ। अब्बा कहने लगे ठीक है मैं भी जाता हूँ भैंस लेने के लिए, चल पहले नाश्ता मेरे साथ कर ले। तो कहने लगी अब्बा मेरा रोजा। रोजा? आज कौन सा रोजे का दिन था? कहने जब मैंने रात को देखा कि हमारे घर में ये सब काम चल रहा है, यहाँ की आमदनी हलाल नहीं है और सुबह सब लोग दुल्हन को नाश्ता जबरदस्ती कराएंगे, तो मैंने फौरन रोजे की नियत कर ली। घर वालों से कह दिया मेरा रोजा है, मैं नाश्ता नहीं करूंगी ताकि हराम लुकमा मेरे सीने में न चला जाए। आप जाइए भैंस लेकर के आइए, अफ्तार हम और आप साथ में करेंगे, मेरा इस वक्त रोजा है। कितना फिक्र है कुरान पाक की अजमत की कि हमारे सीनों से कुरान न चला जाए, हमारे सीने में कुरान रह जाए, नस्लों में कुरान रह जाए। जो इस तरह एहतिमाम करते हैं अल्लाह उस घर से कुरान को महरूम नहीं करता है, कुरान उस घर को महरूम नहीं करता है कुरान पाक से। इसलिए हमको ऐसी फिक्र जब होगी तब जाके ये कुरान पाक हमारे घरों में महफूज रहेगा, वरना अल्लाह छीन लेगा, निकाल लेगा। हम लोगों को ये भी तौफीक नहीं हम खुद कुरान पाक पढ़ सकें, हम तो दूसरों को बुला के कुरान खानी करा रहे हैं। दूसरे लोग आ रहे हैं कुरान पढ़ के चले जा रहे हैं, वो समझ रहा है घर में बरकत हो गई, वो समझ रहा है दुकान में बरकत हो गई। अरे जिसने कुरान पढ़ा था वो सारी नेकियां लेके अपने साथ चला गया, तुम्हारा घर खाली है। ये वो कुरान की बरकत नहीं तो आप ताले के अंदर बंद कर लोगे कि हमने बंद कर ली अब निकल के नहीं जाएगी। जब घर के रहने वाले जब तक कुरान खानी खुद नहीं करेंगे घर में बरकत नहीं आएगी। दुकान पर बैठने वाले जब तक कुरान खानी खुद नहीं करेंगे दुकान में बरकत नहीं आएगी। ये भी शैतान ने धोखे में डाला है, तुम कुरान नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, बुला लिया करो बच्चों को, बुला लिया करो कुरान पढ़ने वालों को और कुरान खानी उनसे करा के उन्हें रवाना कर दिया करो नाश्ता करके, तुम्हारा घर बरकतों से भर जाएगा। बहुत बड़ा धोखा दे रहा है शैतान, इस धोखे में ना आए। जब तक खुद घर में रहने वाले कुरान खानी नहीं करेंगे बरकतों से महरूम रहेंगे। अल्लाह तबारक तआला इस हकीकत को समझकर कुरान पाक की अजमत करने की और इसको खुद पढ़ने की और आने वाली नस्ल को पढ़ाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।